सॉरी बच्चों, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस एवरीवन. So today we are going to start matrices as you know because GST में वो वाला पार्ट आप लोग कह रहे हो कि एग्जाम में नहीं आएगा, तो जितना हम लोगों ने कर लिया उतना मोर देन इनफ है. और अगर जरूरत होगी तो फिर हम लोग और एक क्लास ले लेंगे अगर वो आ रहा होगा तो टिल द टाइम we'll just stop there. And so we have already done the basics and concepts of that. We just need to practice few more questions अगर आएगा तो अभी हम लोग मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे. तो मैट्रिसेस क्या है? A matrix is a rectangular arrangement of numbers arranged in rows and column. Okay, so matrix is an arrangement of numbers arranged in rows and columns. So you can find here जो मैट्रिक्स है, सो ये क्या मैट्रिक्स है? ये 2x1 मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स है. इसको कैसे हम लोग करते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे. तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स कर रहे हैं रोज और कॉलम में. ये रोज हो गए और ये कॉलम हो गया. ऊपर से जो वर्टिकल है वो कॉलम हो गया और इधर जो हॉरिजॉन्टल है वो रो हो गया. तो यहाँ पे 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, यहाँ पे 2 रोज और 1 कॉलम है, यहाँ पे 1 रो है और 3 कॉलम है. राइट. सो ये होता है रोज और कॉलम. तो जो हॉरिजॉन्टल हो गया, इधर रोज हो गए, और जो वर्टिकल है लाइन में दैट इज कॉलम. सो प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्रिसेस. ईच नंबर और एंटिटी इन ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड इट्स एलिमेंट. तो ये जैसे 5 है, 3 है, 2 है, ये सारे क्या हो जाएंगे? मैट्रिक्स के एलिमेंट हो जाएंगे. मान लो अगर हम लोगों ने मैट्रिक्स लिखा 2 3 4, 3 1 2, 4 6 3, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रोज हैं? ये हमारा रो 1 हो गया, ये रो 2 हो गया और रो 3 हो गया. कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2 हो गया और कॉलम 3 हो गया. राइट. सो दिस इज 3 2 1, दिस इज 1 2 and 3. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. So plural of matrix is matrices. Each number or entity in a matrix is called its element. In a matrix, the horizontal lines are called rows. So ये जो horizontal lines हैं, these are called rows, and vertical lines are called columns. So these are horizontal lines, these are rows, and these are vertical lines which are called columns. Clear है बच्चों? Yes, sir. Now order of a matrix क्या होता है? Order of a matrix basically आपको number of rows और number of columns के बारे में बताता है. अगर हम एक मैट्रिक्स को लिख रहे हैं 2x3 मैट्रिक्स, ये इसका ऑर्डर हो गया, जिसमें 2 जो पहले आता है वो नंबर ऑफ रोज होता है, जो बाद में होता है वो नंबर ऑफ कॉलम होता है. ठीक है. तो 2x3 मैट्रिक्स में 2 रोज हो गए और 3 columns हो गए. So if a matrix has m number of rows and n number of columns, its order is written as m by n. तो अगर इसके number of rows जो है m है, number of columns n है, तो ये मैट्रिक्स क्या हो गया? m by n मैट्रिक्स हो गया. m by n मैट्रिक्स.
So consider the matrix. Here you see first row, second row, and then here you have first column, second column, and third column. So these are columns, and this is the row. So it has 2 rows and 3 columns. जब 2 by 3 matrix इसको कहते हैं. Hence its order is 2 by 3. Now, while stating the order of a matrix, the number of rows is given first and then number of columns. तो number of rows पहले दिया हुआ है और उसके बाद number of columns दिए हुए. Now, notation, matrix in general are denoted by capital letters. For example, if capital A is a matrix with m rows and n column, then it is written as A m by n. Similarly, 5 by 3 means a matrix B with 5 rows and 3 columns. So matrices in general are denoted by capital letters. For example, if A is a matrix of with m rows and n column, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं? Generally matrix को हम लोग capital letters से denote करते हैं, denoted by capital letters, और उसको A m by n matrix लिखा मतलब m rows और n columns. तो उसी तरह जैसे B 5 by 3 मैट्रिक्स है, मतलब इसके 5 रोज हैं और 3 कॉलम्स. आ गया समझ में बच्चों? Sir. Yes. Now elements of a matrix, each number or entity in a matrix is called its element. तो मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर होता है या एंटिटी होता है, that is known as its element. So the total number of element in a matrix is equal to product of its number of rows and number of columns. That is, a matrix has 4 rows and 6 columns. The number of elements in it is 4 into 6, which is equal to 24. Now consider matrix A. So you can see these are the rows, 2 rows, and these are the 3 columns. So the number of matrix in number of elements इसमें क्या रहोगे? 2 into 3, which is equal to 6. Number of rows को number of columns से multiply कर देंगे तो number of elements निकल के आ जाएगा. It must be noted here that if a matrix has 6 elements, then it may have. अब देखो अगर मैट्रिक्स के पास 6 एलिमेंट है तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, मतलब किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आपको 6 मिलेगा. 1 into 6 भी 6 होता है, 2 into 3 भी 6 होता है, 3 into 2 भी 6 होता है और 6 into 1 भी 6 होता है. मतलब आपका मैट्रिक्स 1 by 6 भी हो सकता है, 2 by 3 मैट्रिक्स भी हो सकता है, 3 by 2 मैट्रिक्स भी हो सकता है और 6 by 1 मैट्रिक्स भी हो सकता है. उपमन्यु अपना वीडियो ऑन करो. Yes, sir. एक second. तो ये सारे डिफरेंट ऑर्डर्स हो गए मैट्रिक्स के, जिनमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट 6 ही है हर केस में. तो अगर तुमको बोल दिया लेट्स से कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 है, तो इसके सारे पॉसिबल ऑर्डर्स लिखने क्या क्या लिखोगे बताओ? आकांक्ष पहले तुम बताओ, पहला ऑर्डर क्या लिखेंगे इसमें 8 एलिमेंट्स के लिए? आवाज नहीं आ रही, तुम म्यूटेड हो. हाँ बताओ क्या लिखोगे? नहीं आ रहा है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 है तो कैसे बना सकते हैं 8? साथ कैसे बना सकते हैं 8? Sir, 2 into 4, 4 into 2, 8 into 1, 1 into 8. बहुत बढ़िया. तो ये सारे जो है नंबर ऑफ, मतलब ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गए. ये सारे क्या हो गए? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गए. क्लियर है? Yes, sir. अब हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं. तो पहला क्या हो गया? रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसका एक ही रो होता है. सो अ मैट्रिक्स व्हिच हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स.
So since this matrix has 1 row and 2 columns, यहाँ पे ऑर्डर 1/2 हो गया, और ऐसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे. सिमिलरली अगर हमारे पास ये इस तरीके से है ABC, ये क्या हो गया, रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/3. 3 कॉलम है और 1 रो है, तो 1/3 मैट्रिक्स हो गया. सो दिस इज अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/3. अब कॉलम मैट्रिक्स अगर हम करते हैं, मैट्रिक्स विच हैज ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स. जिसमें एक ही रो होगा उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे, जिसमें एक ही कॉलम होगा उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे. जैसे इस मैट्रिक्स में देयर इज ओनली 1 कॉलम, राइट. सो देयर इज ओनली 1 कॉलम, सिंगल कॉलम. सो दैट्स व्हाई. और ये क्या मैट्रिक्स हम लोग बोलेंगे, इसको 2/1 मैट्रिक्स बोलेंगे. ऐसे मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं. नंबर ऑफ कॉलम्स 1 होता है. यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है ये 3/1 मैट्रिक्स है. यहाँ पे 3/1 मैट्रिक्स है. नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे भी 1 है. सो कॉलम मैट्रिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड अ कॉलम वेक्टर. ठीक है, तो ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स हो गया, ये भी हमारा कॉलम मैट्रिक्स हो गया. क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स. अब स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से ही मतलब ये स्क्वायर जैसा दिखना चाहिए. स्क्वायर जैसा दिखना चाहिए मतलब क्या, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे तो स्क्वायर जैसा बन जाएगा, है ना. सो स्क्वायर मैट्रिक्स में अ मैट्रिक्स which has an equal number of rows and column is called the square matrix. तो नंबर ऑफ रोज अगर नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होंगे उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं. नाउ सिंस दिस मैट्रिक्स हैज 2 rows and 2 columns, its order is 2/2. So similarly यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, राइट. तो ये 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है. अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे, वैसे मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं. सो अ मैट्रिक्स व्हिच हैज द नंबर ऑफ रोज in which the number of rows are not equal to number of columns is called rectangular matrix. तो ये आपका 2/3 हो गया और ये आपका 3/2 मैट्रिक्स हो गया. 2/3 और 3/2. नाउ वी हैव जीरो और नल मैट्रिक्स. जीरो और नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं. सो इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज जीरो, इट इज कॉल्ड अ जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स. जैसे ये जीरो मैट्रिक्स है ऑफ द ऑर्डर 1/2, दिस इज जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/1 एंड दिस इज जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2. तो अलग अलग ऑर्डर्स के जीरो मैट्रिक्स हो सकते हैं. ठीक है, तो ये जीरो मैट्रिक्स हो गया. Then we have diagonal matrix, a square matrix which has all its elements zero, each except those on the leading diagonal is called a diagonal matrix. तो यहाँ पे देखो इस मैट्रिक्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो है. तो उसी तरह यहाँ पे ये वाले मैट्रिक्स डायगोनल के अलावा बाकी सारे जीरोज हैं.
तो स्क्वायर मैट्रिक्स विच हैज ऑल इट्स एलिमेंट 0 एक्सेप्ट दोज ऑन द लीडिंग डायगोनल, इसको लीडिंग डायगोनल कहते हैं, यहां से स्टार्ट होके इस एंड तक जाए, ठीक है। So in a square matrix, the leading diagonal means the diagonal from top left to bottom right. यहां से लेके यहां तक, टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट हमारा लीडिंग डायगोनल हो गया। तो उसके अलोंग जो मैट्रिक्स है, उसके अलोंग जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो होना चाहिए और बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, ठीक है। नाउ यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगेन ये वो डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 के बराबर हो, हर एलिमेंट डायगोनल में जो होगा 1 के बराबर होगा। सो डायगोनल मैट्रिक्स in which each element of its leading diagonal is unity। तो मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स का एक और ज्यादा स्पेसिफिकेशन ये कर दें तो डायगोनल मैट्रिक्स के वो मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 के बराबर है उसको हम लोग यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। सो इट इज डिनोटेड बाय आई, उसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इस मैट्रिक्स को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर ये 2x2 मैट्रिक्स है ना तो I2 लिखेंगे, ये 3x3 मैट्रिक्स है इसको I3 लिखेंगे, है ना, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो 3 लिख दिया मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों 3 हो गए। I2 लिखा मतलब यहाँ नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों 2 हो गए। So in other word, it is a square matrix in which each elements of its diagonal is equal to 1 and all other diagonal elements of the matrix are 0. ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज में क्या करते हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को अदला बदली कर लेते हैं, मतलब उसको एक्सचेंज कर देते हैं। सो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम। तो रो को कॉलम बना देंगे और कॉलम को रो बना देंगे। मतलब अगर यहाँ पे ये देखो ये कॉलम था, फर्स्ट रो था, इसको हम लोग फर्स्ट कॉलम बना दिए, उसी तरह जो सेकेंड रो है ये सेकेंड कॉलम है। तो जब रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं उसको हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज क्या हो गया, ए टी। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए टी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो उसको एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बोला जाता है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस को इक्वेट कब कर सकते हैं, जब सारे एलिमेंट्स उसके इक्वल। सो टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ बोथ द मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर। पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा, द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ द मैट्रिसेस आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो है इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बराबर होना चाहिए। सेकेंड रे सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम शुड बी इक्वल टू फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। Second row first column should be equal to second row first column and second row second column should be equal to second row second column। मैट्रिक्स ए है उसको जब हम लोग ऐसे इन जनरल रिप्रेजेंट करेंगे A11 A12 A21 A22, तो मतलब बेसिकली 1-1 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। 1-2 का मतलब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। 2-1 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। सो ये उसका पोजीशन बताता है A11 A12 A21 A22। तो यहाँ पे देखो अगर दो मैट्रिसेस इक्वल है, एक दूसरा मैट्रिक्स हमारा ऐसे है B11 B12 B21 एंड B22, इन दोनों मैट्रिक्स को अगर हम लोगों ने इक्वेट कर दिया, सो मैट्रिक्स A इज इक्वल टू B इफ A11 इज इक्वल टू B11, A12 is equal to B12, A21 is equal to B21, A22 is equal to B22। तो इंडिविजुअली हर एक एलिमेंट अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर हो, देन ओनली वी से दैट द टू मैट्रिसेस आर इक्वल। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir.
अब क्वेश्चंस करते हैं। पहला एग्जांपल कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई ए एंड बी। अब हमें पता है कि दो मैट्रिसेस, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं। दो मैट्रिसेस को इक्वेट करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा। अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसके बराबर होना चाहिए, सो x माइनस टू शुड बी इक्वल टू 0। दो मैट्रिसेस इक्वल कब होता है, जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है ना। तो x माइनस टू 0 के बराबर हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 हो गया फर्स्ट। दूसरा, ये जो सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, ये इसके बराबर हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर, तो y इज इक्वल टू 3, ये सेकंड हो गया। उसके अलावा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जो है, ये इसके बराबर हो जाएगा, a बाई 2 इज इक्वल टू 1 हो गया, a इज इक्वल टू 2 हो गया। उसी तरह b प्लस 1 5 के बराबर हो जाएगा, सो b इज इक्वल टू 5 माइनस 1 4 होगा। ठीक है, तो हमें सबका वैल्यू पता करना था, तो x2 हो गया, y3 हो गया, a2 हो गया और b4 के बराबर। क्लियर है? लिख लिया बच्चों? समझ भी आ गया ना सबको? Yes. Yes, sir. अब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है? दो मैट्रिसेस को हम ऐड तब कर सकते हैं जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर सकें। तुम लोग के स्कूल में छुट्टी हो रहा है क्या ये श्री राम मिलेनियम में 1 तारीख से? हाँ सर, फर्स्ट Yes, sir. अच्छा, पूरे मई छुट्टी रहेगा ऐसा? Yes, sir. गंदे हो रहे हैं ना। Actually, there are many students who are getting infected, so they want to prepone so that everyone can take rest. मतलब एक क्लास का प्रेशर ना हो। अपना कबीर तो ठीक है ना, उसको तो कुछ नहीं हुआ है, गायब है एक दो क्लास से। किसी को पता है कबीर के बारे में? नहीं, दोस्ती है तुम लोग का, पूछ लो भाई। मैं चलो पता कर लेते। चलो, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, compatibility for addition of matrices. So two matrices can be added together if they are of the same order. तो दो मैट्रिक्स को ऐड ही तब कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम, अदरवाइज हम उसको ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, so two matrices can be added together if they are of the same order. So to add two matrices of the same order means to add the corresponding elements of both the matrices. मतलब अगर A और B ऐसा मैट्रिक्स और A प्लस B करेंगे तो 2 को 3 के साथ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड कर देंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐड हो गया, फिर 1 को हम लोग इस 2 के साथ ऐड करेंगे, 5 को 1 के साथ करेंगे और 6 को 4 के साथ कर देंगे। तो 6 प्लस 4 10 हो गया, 5 प्लस 1 6 हो गया, 2 प्लस 3 5 हो गया और 2 प्लस 1 3 हो गया। सो दिस इज द एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस।
Similarly, subtraction of matrices क्या होता है? When corresponding elements are, subtracted, then we say that two matrices are subtracted. So the same rule and method is used for subtraction of matrices as is used for the addition of matrices. So दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट ही तब कर सकते हैं जब इनके ऑर्डर सेम हो और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे. जैसे अगर मैट्रिक्स ए और बी, ए माइनस बी करेंगे तो 5 माइनस 3 2 हो गया, फिर 4 माइनस 0 4 हो गया, 2 माइनस 4 माइनस 2 हो गया और 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया. सो ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. 5 से 3 को और 4 से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अब लेट अस डू दिस क्वेश्चन एग्जाम्पल. हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए बी और सी, तीन मैट्रिसेस दिए हुए हैं. अब हमें ए प्लस बी और बी प्लस ए निकालना है. ठीक है, ए प्लस बी करना होगा 5 4 3 माइनस 2 प्लस ऑफ बी करना होगा -3 0 1 और 4. सो ये क्या हो गया? 5 माइनस 3 4 प्लस 0 3 प्लस 1 -2 प्लस 4. फाइव माइनस 3 2 हो गया, 4 प्लस 0 4 हो गया, ये 4 हो गया, 4 माइनस 2 2 हो गया. ये फर्स्ट हो गया. सेकंड है हमारा ए प्लस बी प्लस ऑफ सी और दूसरा हमारा ए प्लस बी प्लस सी. तो हम लोग ए प्लस बी अगर निकालते हैं, सो दिस इज 5 4 3 माइनस 2 -3 0 1 और 4. सो ए प्लस बी पहले निकाल लेंगे तो दिस इज व्हाट 5 प्लस ऑफ -3 4 प्लस ऑफ 0 3 प्लस ऑफ 1 एंड -2 प्लस 4. 5 माइनस 3 हमारा 2 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, 4 माइनस 2 2 हो गया. सो 2 4 4 2 हमारा वैल्यू हो गया ए प्लस बी. अब ए प्लस बी प्लस ऑफ सी करेंगे. सो दिस इज 2 4 4 2 प्लस ऑफ 1 माइनस 3 0 2 2 प्लस 1 4 माइनस 3 4 प्लस 0 2 प्लस 2. So 3 1 4 and 4. क्लियर है बच्चों? हम लोग को यहाँ पे a प्लस बी के बाद b प्लस ए भी निकालना था.
ये हम लोगों ने निकाला नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे हम लोग वो इक्वेट कर सकें उसको। b प्लस ए अगर करेंगे तो -3, 0, 1 और 4 है, और इससे हम लोग ऐड कर ले रहे हैं 5, 4, 3 और -2, और इनको ऐड करोगे सो दिस इज व्हाट -3 प्लस ऑफ 5, 0 प्लस ऑफ 4, 1 प्लस ऑफ 3 एंड 4 प्लस ऑफ -2। इसको कैलकुलेट करोगे, -3 + 5 2 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया और 2 हो गया, 2 4 4 2, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो ये फर्स्ट और थर्ड वाला यही चीज बोल रहा था। अब a प्लस बी प्लस सी कर का हम लोग एसोसिएटिव, ये क्या, इसको क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो एडिशन इज कम्यूटेटिव अंडर, मतलब मल्टीप्लीकेशन, ये मैट्रिसेस एडिशन इज कम्यूटेटिव, और इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव के लिए चेक कर रहे हैं, अभी a प्लस बी प्लस ऑफ सी निकाल लिया है। यहां तक लिख लिया सबने? अब a प्लस बी प्लस सी हम लोग को देखना है, ये जो सेकंड वाला, a प्लस ऑफ बी प्लस सी निकालेंगे। पहले b प्लस सी निकाल लेते हैं, तो a प्लस ऑफ मतलब 5 4 3 -2 प्लस ऑफ -3 0 1 4 प्लस 1 -3 0 2। 5 4 3 -2 कर लिया, प्लस ऑफ इसको ऐड किया -3 + 1, 0 प्लस -3, 1 + 0, 4 + 2। So this is 5 4 3 -2, -3 + 1 is -2, -3, 1 and 6. So 5 -2 हमारा ये हो गया, 5 -2, 4 -3, 3 -2 and -2 + 6। 5 -2 हमारा हो गया 3, 4 -3 1, 3 -2 1, -2 + 6 4। क्लियर है बच्चों? Is it clear?
लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Now, in addition or subtraction of the matrices, the order of resulting matrix is the same as the order of matrices added or subtracted. If A, B, and C are the matrices of the same order, A plus B is equal to B plus A. This is addition of matrices is commutative, जो हम लोग बात किए थे अभी. A plus B plus C is A plus B plus of C. मतलब पहले अगर B plus C को ऐड करो, चाहे A plus B को ऐड करो, रिजल्ट सेम होगा. So addition of matrices is associative. Third is A plus X is equal to B, then X is equal to B minus A. मतलब ये ट्रांसपोज भी कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज सॉल्विंग बाय ट्रांसपोजिशन. दूसरे तरफ लेके चले जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपोज कर देना इक्वेशन में, है ना. सो वी आर मैट्रिसेस कैन ऑल्सो बी सॉल्व बाय ट्रांसपोजिशन. क्लियर है बच्चों? Yes. Yes. थर्ड क्या कह रहा है? इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ये 5, 4, 3 और -1 है, और दूसरा मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 2, 1, 0 और 4 है, और मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू -3, 2, 1 और 0 है. हमें निकालने बोल रहा है ए प्लस सी मैट्रिक्स. सो दिस इज इक्वल टू 5, 4, 3, -1 प्लस ऑफ -3, 2, 1 और 0. So this is equal to 5 minus 3, 4 plus 2, 3 plus 1, minus 1 plus 0. 5 minus 3 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, और ये -1. अब ये तो a प्लस सी हो गया. सेकेंड है b माइनस ए, 2, 1, 0, 4, minus of a, 5, 4, 3 and -1. So 2, 1, 0, 4 है, 5, 4, 3, -1. So इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 minus 5, 1 minus 4, 0 minus 3, 4 plus 1. 2 minus 5 is -3, 1 minus 4 is again -3, 0 minus 3 is -3, 4 plus 1 is 5. क्लियर बच्चों? लिख लिया बच्चों? Yes. Yes. अब इसके बाद हमें a प्लस बी माइनस ऑफ सी निकालना है. सो a प्लस बी माइनस ऑफ सी, तो हमारे पास मैट्रिक्स है 5, 4, 3 और -1 प्लस बी मतलब 2, 1, 0 और 4, माइनस सी मतलब माइनस और -3, 2, 1 एंड 0. पहले एक एक करके करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं. इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 plus 2, 4 plus 1, 3 plus 0, -1 plus 4,
minus of -3, 2, 1 and 0. So a plus b, 5 plus 2 is 7, 4 plus 1 is 5, 3, 4 minus 1 is 3, minus of -3, 2, 1 and 0. सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7 minus of -3, 5 minus 2, 3 minus 1, 3 minus 0. So 7 plus 3, 5 minus 2, 3 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 7 plus 3 अगर हम लोग इसको 10 लिख लेते हैं तो 10, 3, 2 और 3. क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया आपने? लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes. फोर्थ क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स ए है 2, 1, 3, 4 minus 3, 2. अब ए ट्रांसपोज करेंगे तो हम लोगों ने क्या बोला भाई, ट्रांसपोज करने पे रो कॉलम बन जाता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 2, 1, 3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा 4 minus 3, 2. अब कह रहा है आप ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालो, निकाल सकते हैं क्या ए प्लस ए ट्रांसपोज? निकाल सकते हैं क्या इसको? भाई ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज नॉट सेम, कैन यू ऐड दीज टू मैट्रिक्स? These two matrices cannot be added, right? So you will write A plus A transpose is not possible since order of both the matrices so order of both the matrices to be added is not of the same order, is not same. Since it is not same, we cannot add them together. Clear बच्चों? Yes. Yes, sir. लिख लिया आप सबों ने? Yes. Yes, sir. अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है, वैसे ही यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो गया, नल मैट्रिक्स हो गया. तो किसी भी नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, वैसे ही नल मैट्रिक्स इज द एडिटिव आइडेंटिटी इन केस ऑफ एनी मैट्रिक्स. ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी मैट्रिसेस इज नल मैट्रिक्स. So when you add a null matrix to any matrix, you get the same matrix.
क्लियर बच्चों? Now we have additive inverse. So additive inverse क्या है? If A and B are two matrices of the same order, such that A plus B is equal to B plus A, a null matrix, then A is said to be the additive inverse of B. मतलब कोई एक मैट्रिक्स को ऐड करने से अगर हमें नल मैट्रिक्स मिल रहा है, तो वो जो दूसरा मैट्रिक्स हमने ऐड किया है वो एडिटिव इनवर्स होगा पहला मैट्रिक्स का. क्यों? क्योंकि A प्लस ऑफ माइनस ए 0 है, तो A का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? माइनस ए. क्लियर बच्चों? Yes, sir. सो ओ, ये जो जीरो ओ जो लिख रहा है, O इज द जीरो मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एज मैट्रिक्स ए. A प्लस 0 इज 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए. इसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं. और A प्लस ऑफ माइनस ए इज माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स. इसको एडिटिव इनवर्स बोलते हैं. मैथमेटिकली इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. चलो विल स्टॉप हियर. इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है? थोड़ा सा ही रह गया है, उसको करके हम लोग अगला एक्सरसाइज क्लास में कर लेंगे. ओके बच्चों? Yes, sir. Thank you, Yes. sir. ठीक है बच्चों, चलो बाय, टेक केयर.